क्या ये सौभाग्य कि आप और मैं प्रभु की नजदीकी में, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की हुजूरी में पाए जाते हैं। आज की इस शाम की सभा में आप सभी लोग जो जुड़े हैं, आप सभी का मैं स्वागत करना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, अपने मित्रों को जल्द से जल्द आप बुलाएं ताकि हम सभी लोग मिलकर प्रभु के नाम की महिमा करें, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं। और साथ ही साथ में जब प्रभु के दास प्रभु के वचन को हमारे बीच में लेकर आते हैं, उसके लिए आप और मैं अपने आप को तैयार करें। आप सभी का स्वागत है। आइए मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। क्या इस सौभाग्य की बात है। मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में प्रभु के दास रेवरेंड वेनु सर है। प्रभु के दास बहुत ही आशीषित है, मिस्र इंडिया के कोरोना वन के सेवकाइयों को सब कुछ को संभालते हो। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं सर से अनुरोध करूंगा, आज की सभा को प्रार्थना के साथ में शुरू करेंगे। Let's pray. Let's close our eyes and we'll pray. Our gracious Heavenly Father, we thank you so much for this bright evening that you have given us in our life, Master Lord Jesus. Thank you so much for all the blessings that you have poured upon us in our lives. Lord, we are unworthy. We are sinners. We are, Lord, just mud. But, Lord, you have chosen us. And, Lord, thank you so much for your ministry purpose, Master Lord Jesus. Lord, we acknowledge all the blessings that you have put upon us in our lives. Lord, we especially pray for Mission India Youth Retreat, Master Lord Jesus. Lord, last 2 days have been, Lord, successful. It's running, and today's the last day. Lord, we pray for enter all the members, to those who are really looking into all the online Zoom and the YouTube, whatever it might be, Lord Jesus. Lord, we are submitting everybody unto your mighty hand. Lord, please you speak to us, Master Lord Jesus. The rest of the programs, Lord, worship and also, Lord, testimonies and whatever it is, all the and your servant, the preaching this, especially the preaching the word of God, Master Lord. Lord, we pray for your servant. Lord, we are submitting him unto your mighty hands, Master Lord Jesus. Lord, please you anoint him, Lord. Every word that he utters, Master Lord Jesus, that should be for all of us, for correcting and blessing and encouraging for all of us too, so that we may correct ourselves and walk according to thy will, Master Lord Jesus. Once again, we thank you and we bless all the Mission India ministry, and we bless the leadership of our dear Saji sir and the PD sir and everybody, Lord, who are involved in this ministry. Lord, we're submitting everybody unto your mighty hand. Especially, Lord, we pray for all the youth who are here, especially those who are eager to learn the word of God. Lord, please you speak to them, Master Lord Jesus. Lord, every word that is going to come us and everything that we are doing to hear, Lord, let your name be glorified, Master Lord Jesus. Once again, we thank you. The rest of all the programs, Lord, unto your mighty hand. Lord, speak to us. Let your name be glorified through these meetings. All the glory and honor to the name. Especially, Lord, I pray for the arranging brother Vishnu also unto your mighty hand. Thank you so much for his leadership and bless him. In Jesus' name we ask this pray. Amen. 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 Thank you, sir, for leading us in prayer. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आप सभी के लिए जो आज शाम को हमारे साथ में जुड़े हैं। आप और भी लोगों को इस समय जब हम आराधना करते हैं उस समय में आप बुला सकते हैं और हमारे साथ में जुड़कर हम सभी जन मिलकर प्रभु की आराधना कर सकते हैं, प्रभु के नाम को ऊंचा उठा सकते हैं। भजन 96 उसका पहली और दूसरी आयत में लिखा, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, ऐ सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य करो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। आप और मैं पूरे भारत देश के अलग अलग जगह से जुड़े हैं और हम सभी लोग, इवन दो हमारा माइक बंद है, और हम सभी लोग गीतों को गाते हुए प्रभु की स्तुति करते हुए बहन प्रिया के साथ में मिलकर जो महाराष्ट्र से है, हम बहन प्रिया के साथ में मिलकर David, please unmute, okay? मैं चाहूंगा आगे के समय हम मिलकर प्रभु के नाम की आराधना करें। हमारे बीच में बहन प्रिया नंदेश्वर है, बहन महाराष्ट्र से है, जो कुछ देर अपनी टीम के साथ में मिलकर हमें आराधना में अगुवाई करेंगे। क्यों ना जोरदार तालियों के साथ में हम बहन का स्वागत करेंगे, उनके साथ मिलकर हम प्रभु के नाम की आराधना करेंगे। सभी को जय मसीह की। मेरा आवाज आ रहा है क्या? जी, आपका आवाज आ रहा है। जय सभी को जय मसीह की। आवाज आ रहा है क्या मेरा? Yes, yes, तेरा आवाज आ रहा सभी है। को जय मसीह की। आप सब Lord, जय मसीह। मुझे मौका दिया है, प्रभु का भी धन्यवाद।
हेलो। Priya, you can सुन start रहे the हेलो। worship. Priya, you can start the worship. We can hear you. ओके। ओके। So let's get started with our worship with our prayer. प्रभु का धन्यवाद हो इस समय का। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद कि सुंदर सा समय आपने हमें दिया पिता परमेश्वर, आपकी आराधना करने का पिता। और हम अच्छे गीतों को गाकर आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर। प्रभु हमारी अगुवाई को सुन पिता परमेश्वर। आज जितने भी लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, उपस्थित है पिता परमेश्वर, इन सब लोगों के जीवनों में आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आप कार्य करें खुदा आराधना के साथ पिता परमेश्वर, और आपकी उपस्थिति यहाँ पर हो पिता परमेश्वर। सारी बाधाएं अड़थड़ा सब कुछ हम लोग प्रभु दूर करते यीशु के नाम से। Oh, hallelujah. तूने मुझे कर गाने योग्यता है से तूने मुझे आ प्रभु मैं मारी शीश छे आ धन्य के साथ स्तुति गा जो मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्य के साथ स्तुति गाए यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, धन्यवाद। तू है सच्चा से तुझ पर भरोसा, तुझ पर नहीं भरोसा। प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूर्ण, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाओ है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हो धन्यवाद 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 प्रभु, महिमा आराधना। तू भला है, तू सर्वश्रेष्ठ राजा, तेरा धन्यवाद हम करते हैं खुदा। तू भला है, तू गौरवशाली है प्रभु। ओ हालेलुया, हो धन्यवाद। द्रवणिया खाला कपाल शिखांदरी आलरबा, शिखांदरी कालरबा, शिंदीरबरी कालरबा, गौरव महिमा महिमा। हो धन्यवाद प्रभु, तू हमारी आशा है, तू हमारा किनारा, तू हमारा सहारा है प्रभु। अंधकार से उठाकर उजाले मिलेगा
धन्यवाद धन्यवाद, तू हमारी आशा है। हो हालेलुया। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुनाह। क्रूस से मैं पाई है माफी, सुंदर मसीहा अब मैं हूँ तेरा। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। ऊंची आवाज में हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने तोड़ी हर जंजीर। यीशु मसीह तू है आशा की। हालेलुया, हालेलुया, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में है यीशु मसीह। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेज फिर सांसें खामोशी में से तूने पुकारा। कब्र तेरी जीत है कहा। आई वो सुबह, वादा पूरा, बेज फिर खामोशी में से तूने पुकारा। कब्र तेरी जीत है कहा। यीशुआ तेरी जय हो सदा। हाँ, praise the Lord. Then said Jesus Christ, my living hope. Praise the Lord. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. यीशुआ तू है आशा मेरी। ओ धन्यवाद धन्यवाद, ओ हालेलुया, योग्य है तू। धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति हालेलुया। Ora barila rava shindariva। हो आइए हम अपने हाथों को उठाएंगे, प्रभु की ओर अपने मन को लगाएंगे। ही पर भरोसा
सा है यीशु, मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया, कर पुकार जी को भर दिया, है बचाया तूने, जीवन दिया, लेकर पुकार जे महिमा से मुझको भर दिया, सदा रहेगी मुझ पर देखूंगा मैं यीशु तेरे यीशु तेरे यीशु तेरे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, ओ धन्यवाद प्रभु, oh yes Lord, you Almighty God, we worship you from our heart with all of my soul, oh yes Lord, hallelujah. Oh yes Lord, oh yes Lord, your Jesus, yes Lord, धन्यवाद धन्यवाद महिमा, oh हालेलुया हालेलुया प्रभु, oh धन्यवाद। हम सब मिलकर प्रभु की महिमा गाएंगे, वो भला सर्वश्रेष्ठ, उस पर हम भरोसा करते हैं, वो राजाओं का राजा है, गौरव उसी को, महिमा उसी को, आदर उसी को, ओ धन्यवाद गौरव महिमा। Treasure that I see, you are my own. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up, I'd be a fool. You are my own. Jesus. Rising again, I bless your name. You are my you fill my cup. You are my
shame. Rising again, I bless your name. You are my you fill my cup. You are my Jesus. Your name. Hallelujah. धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान है खुदा। इस समय प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं प्रार्थना करने के लिए। खुदा तू महान है, तू सर्वश्रेष्ठ है खुदा। इस समय प्रभु हम आराधना को प्रभु आपके सामने समर्पित करते पिता परमेश्वर। हमारी आराधना को आपने सुना, इसीलिए हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपका। खुदावन आपने हम सभी को एकत्रित किया, इसलिए आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। यहाँ पे उपस्थित हर एक जन को प्रभु आप आशीषित कीजिए, सहायता करे, मदद करे। जो भी कुछ प्रभु के दास जो वचन हमारे लिए लेकर आए हैं प्रभु, उस वचनों से प्रभु हमारे जीवन में बहुतायत रीति से तू कार्य कर पिता परमेश्वर, और हमें सहायता और मदद कर प्रभु। इन वचनों से प्रभु हम चलने वाले नहीं तो हम प्रभु सिर्फ सुनने वाले नहीं तो हम चलने वाले बने पिता, और इसको प्रभु हम अपने जीवन में लागू करें। ऐसी हम प्रार्थना आपसे करते हैं पिता परमेश्वर। आगे का हर एक समय हम आपके हाथों में देते खुदा। हर एक उस अड़थड़ों को दूर कर पिता परमेश्वर, और सभी कुछ चीजों को प्रभु हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा सिर्फ खुदा यीशु मसीह के मीठे प्यारे सुरीले नाम को। आमीन। थैंक यू बहन, बहुत ही आशीषित आराधना में आपने हमारा अगुवाई किया। प्रभु आपको बहुत आज से ब्लेस करे, प्रभु का अनुग्रह आशीष आपके जीवन पर बना रहे। हम आपको धन्यवादित हैं। थोड़ा सा नेटवर्क में दिक्कत था, पर मैं आशा करता हूँ हम सभी ने मिलकर कुछ देर प्रभु के नाम की आराधना किया है। मैं कभी कभी बच्चों को पढ़ाते हैं, और जब स्कूल में बच्चों को पढ़ाते तो एक बार कुछ ऐसा घटना घटित हुआ। एक बच्चे को पढ़ाते समय बच्चे को बोला, बच्चा पढ़ लो नहीं तो मैं तुमको मारूंगा। बच्चा उस पे तैयार नहीं होता कि आप मारेंगे करके। बच्चा अपनी धुन में ही रहता। हम सब जानते हैं बच्चे चंचल रहते हैं। बच्चे को बोला बेटा पढ़ लो, वो माना ही नहीं। फिर ऐसा हुआ कि बच्चा और उधम कर रहा था, तो बच्चे को मैंने कहा टेबल पे खड़े हो जाओ। बच्चा टेबल पर खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होता है। मैं एक डंडा लेकर आता हूँ, बच्चे को जोर से मारता हूँ और उसके बाद में बोलता हूँ बच्चे को खड़े हो जाओ। तो बच्चा काफी बोलने के बाद में जब मैंने डंडा मारा तब जाके वो टेबल पर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर के बाद में मैंने कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना खड़े हो जाओ टेबल पे, नहीं तो मैं तुमको मारूंगा। तो बच्चा बोलता मैं मन में अभी भी नीचे ही खड़ा हूँ। कई बार ऐसा घटना होता है कि यदि हम सब कुछ कर लें, यदि आपका और मेरा मन प्रिपेयर नहीं है, यदि हमारा मन तैयार नहीं है, उस बच्चे के समान जो टेबल पर खड़े होने के बाद में भी इस प्रकार से बोलता है कि मैं मन में अभी भी नीचे ही बैठा हूँ, नीचे ही खड़ा हूँ, तो आप और मैं कभी भी अपने जीवन में सुधार को नहीं देखेंगे। पर यदि हम हृदय से गहराई के साथ में, तैयारी के साथ में प्रभु के निकटता में आते हैं, अपना जीवन प्रभु को देते हैं, प्रभु के मेरे जीवन में प्रभु आज अपने दास के द्वारा मुझसे बात करेगा करके एक तैयारी के साथ में यदि आप और मैं प्रभु की निकटता में आए हैं, आज के इस शाम के समय में प्रभु अपने अभिषिक्त दास के द्वारा आपसे, मुझसे, हम सभी से बात करने जा रहा है। क्या आप विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते तो एक बार हाथ हिलाकर दिखा दीजिए। प्रभु आज आपसे बातें करेंगे। जी, एक छोटा सा एक्टिविटी को हम करेंगे जल्द से। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। एक अभिषिक्त प्रभु के दास हमारे बीच में है। प्रभु के दास आपको और मुझे वचन के सेवकाई में लेकर जाएंगे। जल्दी से मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाऊंगा, और आपको वो इमेजेस विष्णु पास्टर, मैं चाहूंगा आप मुझे स्क्रीन शेयर अलाउ करें। आई विल, मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा।
Pastor Vishnu, if you could allow me to share screen. Yes, you can share screen. Thank you, Pastor. देखिएगा, मैं आपको एक चित्र जैसा आपको दिख रहा होगा, ऐसा चित्र है। आपको तुरंत बताना कि ये बाइबल की कौन सी कहानी है या बाइबल का कौन सा कैरेक्टर है। आपके पास में अधिक समय तो नहीं है, करीब करीब 10 क्वेश्चन हमारे पास है, और जो टॉप करेंगे आप हमसे मिल सकते हैं। आपके लिए एक विशेष पुरस्कार रखा गया है। जैसे कहानी कि नो आपको म्यूट रखना है, आपको चैट में लिखना है ये कौन सी कहानी है। जैसे कुछ लोगों ने जल्दी से बता दिया कि ये नूह का कहानी है। अगला स्लाइड आपके सामने शेयर होते हुए 1 2 3 जल्दी से गैस करिए ये कौन सी कहानी है। आदम और हव्वा। आदम और हवा का कहानी है। जो चैट में लिखेंगे उनका गिना जाएगा। अगला अगला स्क्रीन आपके लिए। सिम्सोन। सिम्सोन का कहानी है। अगला स्क्रीन आपके लिए। नो नो नहीं नहीं, आप गलत है, आप लिखते जाइए। योना 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 का कहानी है। योना। यस, मैं लिख नहीं आप रहा हूँ। लिखिए लिखिए, टाइम। लिखने वालों का गिना जाएगा। दाऊद दाऊद। दाऊद है। पांचवा प्रश्न आपके लिए। ये इसका पता नहीं चल रहा है। कुछ लोगों ने लिख दिया है। मूसा का कहानी है। अगला स्क्रीन। यस यस यस। छठा प्रश्न आपके लिए। एलिया क्या लग रहा है? एलिया का। अगला प्रश्न आपके लिए। ये है औरत लगी बस छोटा बारा नन्हे नन्हे पेड़ों पे फल जो योना। गस करिए। मैं लिख नहीं रहा हूँ। वो शायद सातवां प्रश्न कोई भी नहीं कर पा रहे हैं। सातवां प्रश्न अभी तक मुझे सही। यस, किसी ने लिखा है शमूएल। बिल्कुल परफेक्ट। ओ या आठवां प्रश्न। अब्राहम। अब्राहम और इसहाक का कहानी है। आखिरी आपके लिए। इसके बाद उड़ाव पुत्र। बिल्कुल सही। इसका ये क्या है? यस, उड़ाव कूद। आखिरी प्रश्न आज का आपके लिए। दानियल। दानिएल का कहानी। आपके मैसेजेस हमारे पास में है, हम चेक करेंगे किसने टॉप किया है। प्रिय भाइयों और बहनों, आप और मैं युवा हैं, आप और मैं अधिक से अधिक बाइबल को पढ़ सकते हैं। आप और मैं अधिक से अधिक प्रभु में इस्तेमाल हो सकते हैं। मैं बता दिया तो आप सभी अपने माइक, सभी यस। जन अपने माइक को म्यूट कर लें। प्रभु हम सभी को बहुत आयत से ब्लेस करें। हमारा ये दर्शन है, हमारी ये प्रार्थना है मिशन इंडिया YFT के मिनिस्ट्रीज के द्वारा।
ऐसे बहुत से जवानों को हम जीत सके, बहुत से जवानों को प्रभु के पास लेकर आ सके। और उसका भी एक माध्यम है, आप और मैं इस जूम के द्वारा आज शाम को मिल पा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ आप और मैं और अधिक प्रभु के द्वारा इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रभु आपको और भी अधिक, आपको और मुझे उपयोग कर सकता है। तो इन दिनों में अपने जीवन को प्रभु के साथ दे। किसी भी प्रकार से आपको लगता है मुझे वचन को और सीखना है, वचन को और जानना है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी सहायता करेंगे सब प्रकार से। आइए, अधिक समय मैं नहीं लेना चाहूंगा, प्रभु के दास को आगे का समय देना चाहूंगा। आज शाम को हमारे बीच में प्रभु ने अपने अभिषिक्त दास को भेजा है। प्रभु के दास रेवरेंड विल्सन जोसफ आज शाम को हमारे बीच में है। प्रभु के दास एजी चर्च के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है। प्रभु के दास उत्तराखंड में प्रभु के नाम की सेवकाइयों को करते हैं। 1997 से लगातार प्रभु की सेवकाइयों को, लगभग 15 साल से प्रभु के दास वहां पर पहाड़ी स्थानों में प्रभु की सेवकाइयों को कर रहे हैं। बहुत ही क्रूशियल जगहों पर प्रभु के नाम की सेवाओं को प्रभु के दास कर रहे हैं। आज शाम को हमारे नम्र निवेदन को स्वीकार करते हुए प्रभु के दास हमारे बीच में है प्रभु के वचन की सेवकाई को करने के लिए। आई वुड लाइक टू welcome our dear son in our midst. Sir, please take the time and please speak to us through the word of God. We are really thankful to you. On behalf of whole Mission India YFT team, all of us, I want to welcome you. Over to you, sir. Thank you very much, Brother David, and thank you very much, Brother Vishnu, who invited me to come and share this platform. मैं परमेश्वर का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ भाई डेविड के लिए, और साथ ही साथ धन्यवाद करता हूँ ब्रदर विष्णु के लिए, जिन्होंने मुझे इस बात के लिए आमंत्रण दिया कि मैं आपके साथ में मिल करके और हम सब एक साथ मिल करके परमेश्वर के वचन को सुने। सो परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आई कुड सी सो मेनी फैमिलियर नेम्स आर अपीयरिंग। सो कुछ जाने पहचाने नाम है जिसको देख के मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने लोगों के बीच में ही बैठा हुआ हूँ। सो मुझे पता नहीं कि आप कितना नर्वस है, मैं भी नर्वस हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के वचन को हैंडल करना ये ह्यूमन एफर्ट नहीं है। वी रियली नीड द ग्रेस ऑफ गॉड। इसके लिए हम सबको परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। और एवरी टाइम वी स्टैंड और स्पीक फॉर गॉड, जब भी मैं और आप परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं या परमेश्वर के वचन को अपने हाथ में लेते हैं, अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर देखें, ये बात इसीलिए परमेश्वर ने अपने अपने लोगों को इस बात को कहा कि तुम मेरे नाम को व्यर्थ में मत लेना। क्योंकि अगर ओल्ड टेस्टमेंट के हिसाब से आप देखें तो उन लोगों को, जब ओल्ड टेस्टमेंट के जो लोग हैं वो परमेश्वर के नाम को जल्दी अपने मुंह से लेते नहीं। इवन अगर आप हिब्रू बाइबल में देखें, जो यहोवा हम पढ़ते हैं, वो भी जो एग्जैक्टली जो यहोवा नाम है उसको वैसे स्पेल नहीं किया गया है, वैसे उसको लिखा नहीं गया है, बल्कि ऐसा लिखा गया है कि जैसे ह्यूमन टर्म में थोड़ा सा कम करके लिखा गया है, कि ताकि हम उस नाम को लेने से पहले 10 बार सोचें। I'll make it more simple. मैं हो सकता है ब्रदर विष्णु को विष्णु करके कॉल कर सकता हूं कि विष्णु आप कैसे हैं, लेकिन आप में से जो ब्रदर विष्णु के अंडर में स्टडी कर रहे होंगे, they cannot take the name of Vishnu directly. Only the people, those who have a close relationship with Vishnu, they can call him Vishnu. Not everyone is allowed to call the name Vishnu as Vishnu. आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से परमेश्वर के नाम को वही लोग ले सकते हैं जो परमेश्वर के साथ में रिलेटेड या परमेश्वर से जो जुड़े हुए हैं, वही परमेश्वर के नाम को या परमेश्वर को पुकार सकते। इवन हिब्रू बाइबल में जो परमेश्वर का नाम भी लिया गया है, उसको भी एक तरह से कहना चाहिए कि अगर एक जगह पे कुछ एक वर्ड लिखा तो थोड़ा डिस्टेंस दिया, क्योंकि वो इतना पवित्र नाम है। आमीन। और उस पवित्र परमेश्वर की मैं और आप सेवा करते हैं।
Glory to Jesus, glory to Jesus. I could feel the presence of God. परमेश्वर बहुत सी बातों को मेरे हृदय में डाल रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं उन सब बातों को आपसे बोलना शुरू करूं, मैं परमेश्वर के वचन से एक हिस्से को पढ़ना चाहता हूं. आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज म्यूट योर माइक. अगर आप अपने माइक को बंद रखेंगे, सो जो डिस्टरबेंस है वो हमारे बीच में नहीं होगा. सो आप अपने माइक को बंद रखें, और अगर आप कैमरा. Sir, you can now unmute. I will mute all, then you have to unmute, okay? आई एम ऑडिबल? Yes, sir. ओके. सो आइए सीधे हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे, और मैं चाहता हूं कि एक जन हिंदी में और एक जन मेरे लिए इंग्लिश में वचन से इस हिस्से को पढ़ दे. बुक ऑफ जोब चैप्टर 1 और वर्स 13 to 22. अय्यूब की पत्री, सॉरी अय्यूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके 13 से लेकर के 22 पदों को हम पढ़ेंगे. यूजुअली हम यूथ मीटिंग में ऐसे टेक्स्ट को पढ़ते नहीं हैं, बट इट्स अ वेरी स्ट्रेंज टेक्स्ट आई एम टेकिंग, बट गॉड इज गोइंग टू स्पीक ऑल ऑफ यू. परमेश्वर आप सबसे कुछ बात करने पर है. कोई भी एक जन हिंदी में और कोई भी एक जन इंग्लिश में इसको पढ़ दे. एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाख मधु पी रहे थे. तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदहिया उनके पास चर रही थी कि शब्बा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ. वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ. वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊँटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ. वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ. तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा. यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है. इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया. आमीन. Someone can read in English. अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इस बारे में फॉलो कर सकते. One day, when Job's sons and daughters were fasting and drinking wine at the elder's brother's house, a messenger came to Job and said, the oxen were plugging and the donkey were grazing nearby, and the servants attacked the maid off with them. They put the servants to the sword, and I am the only one who has escaped to tell you. While he was still speaking, another messenger came and said, the fire of the God fell from the heaven and burned up the sheep and the servants, and I am the only one who has escaped to tell you. While he was still speaking, another messenger came and said, he children forms 3 rapiding parties and sat down on your camels and made off with them. They put the servants to the sword, and I am the only one who has escaped to tell you. While he was still speaking, yet another messenger came and said, your sons and daughters were fasting and drinking wine at the elder's brother's house, when suddenly a mighty wind swept in from the desert and struck our corners of the house. It collapsed on them, and they are dead.
And now I am the only one who has escaped and tell you. At this Job got up and tore his robe and saved his head. Then he fell to the ground and in worship and said, Naked I came from my mother's womb, and naked I shall depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Amen. Amen. बड़े ध्यान से मेरी बातों को आप सुनिएगा। जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होता है, जैसे देश के प्रधानमंत्री कहीं आ रहे हैं, या कोई डीएम आ रहा है, या सीएम आ रहा है, डीएम तो नहीं लेकिन कोई सीएम आते हैं, या कोई बड़े मिनिस्टर आते हैं, या प्राइम मिनिस्टर आते हैं, या प्रेसिडेंट कहीं पर आते हैं, सो एक चीज होती है कि आप देखते होंगे कि बहुत से व्हीकल्स आपको सुनाई देते होंगे। पहले कोई हॉर्न बजाते हुए जाता होगा, फिर कोई दूसरी गाड़ी आती, फिर एम्बुलेंस आती, फिर जीप आती, पुलिस की जीप आती। ये सब गाड़ियों के बीच में एक गाड़ी जो आप देखते हैं, एक व्हीकल देखते हैं जिसको बोलते हैं इंटरसेप्टर। और ये इंटरसेप्टर का काम ये होता है इस गाड़ी का कि उसके आसपास जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं, जितने भी कम्युनिकेशन के जो कहना चाहिए कि जो पोर्टल है, या कहना चाहिए जो माध्यम है, मीडियम है, खासतौर से मैसेजेस वगैरह के, ये इंटरसेप्टर क्या करता है, उस फ्रीक्वेंसी को जैम कर देता है। उसको एक तरह से जैमर भी कहा जाता है। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आज की संध्या जबकि परमेश्वर का बड़ा एक 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 कहना चाहिए कि विजिट, एक बड़ा मोमेंट परमेश्वर का हमारे बीच में होने पर है, एवरी फ्रीक्वेंसी ऑफ द इविल, every frequency of the demon, every frequency of the Satan, हर शत्रु की, अंधकार की, दुष्ट की, डिस्टर्ब करने वाली, नेटवर्क में प्रॉब्लम डालने वाली, और प्रभु इस मिनिस्ट्री को प्रभु जी होने से, लोगों को सुनने से, देखने से, और प्रभु आपकी सामर्थ्य को महसूस करने से डिस्ट्रैक्ट करती है, यीशु के नाम में उस सारी फ्रीक्वेंसी को हम इंटरसेप्ट कर देते, जैम कर देते हैं। और प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते कि प्रभु आपके लोग, प्रभु जबकि आपकी उपस्थिति में बैठे और आपसे बड़ा वीआईपी, वीवीआईपी प्रभु, और आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए और कोई काम नहीं। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, एज योर पीपल सिट इन योर प्रेजेंस टू हियर योर वॉइस, स्पीक टू आवर हार्ट्स। प्रभु हमारे हृदयों से बात करें। रिबा शबा लबा लबा लबा, रिबे शबा लबरिंद हे लबा शबा लबो तुरले से, कुरला शबा बाबा 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 बाबा। I saw one name Mahesh. I saw one name Mahesh while I was before I was entering into the prayer room. God gave me that name Mahesh, and then I saw that one Mahesh was in the Zoom. Somebody is from, I don't know who Mahesh is, but God is telling you, Mahesh, आप जो भी हैं, एक साल के अंदर आपकी लाइफ के अंदर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़ा कार्य, एक बड़ी सेवा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर लेकर के आ रहे हैं। और ऐसी चीज को लेकर के आ रहे हैं जिसकी आपने उम्मीद नहीं की, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं, लेकिन परमेश्वर महेश आपकी लाइफ के अंदर इस बात को कहने के जा रहे हैं। Another name I saw, Jyoti Gohe. I do not know. It seems, but what I could see by seeing your face, you are a prayerful woman. God is blessing your prayer ministry, and through your prayer, many stronghold God is going to bring. आपकी प्रार्थना के द्वारा, आपके प्रार्थना के द्वारा, आपकी प्रार्थना के द्वारा, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इसी समय परमेश्वर का अभिषेक और बड़ी सामर्थ के साथ बहन आपके पर उतरा। परमेश्वर इस बात को कह रहा है, आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बहुत से शैतान के मजबूत गढ़ों को तोड़ने के लिए जा रहा है। और आपकी प्रार्थना के द्वारा, मुझे आपके बारे में ज्यादा मालूम नहीं, बट व्हाट आई कुड फील इन माय स्पिरिट, परमेश्वर आपको दर्शन देता है, परमेश्वर आपको चीजों को बताता है, परमेश्वर उसके लिए आपको एक और रेल्म में लेकर के जा रहा है, एक हायर रेल्म में परमेश्वर आपको लेकर के जा रहा है। हो सकता है कि अब तक आप जो कर रहे हैं वो बहुत हिडन हो, मेनी पीपल डू नॉट अबाउट, उसके बारे में ज्यादा जानते नहीं है,
बट परमेश्वर आपको क्या है, फ्रंट में लेकर के आने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपको सामने लेकर के जाने जा रहा है। आपकी जो मिनिस्ट्री, आपकी जो प्रेयर मिनिस्ट्री, उसको परमेश्वर सामने लाने पर है, और परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन से प्रकट करने के लिए जा रहा है। प्रिया, यू हैव अ वेरी अनॉइंटेड वॉइस, मे गॉड ब्लेस यू। और परमेश्वर ने एक बात को दिखाया, फॉर समथिंग इन योर लाइफ यू आर स्ट्रगलिंग सो मच। कोई एक ऐसा विषय आपके जीवन के लिए जिसके लिए परमेश्वर के सामने आप बहुत बैठे हुए हैं, उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। हो सकता है किसी बात को चूज करने के लिए परमेश्वर, गॉड इज गोइंग टू हेल्प यू, कि आप उस चीज से बाहर निकल पाएंगे, उसमें क्लैरिटी को पा पाएंगे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज की संध्या जबकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर हमारे बीच में। जब मैं इस परमेश्वर की बात करता हूं मैं सडनली बहुत ही एक्साइटेड हो जाता हूं, बिकॉज वी सर्व द गॉड हु इज वेरी मच रियल। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो कि सच्चा और वास्तविक परमेश्वर। व्यवस्था विवरण उसके 4 अध्याय के अंदर ऐसा लिखा है, ऐसी कौन सी बड़ी जाति है जिसका परमेश्वर उसके इतना निकट रहता है कि जैसे जब कोई उसको पुकारता है उसके सामने। जिस परमेश्वर की मैं और आप आराधना करते, द मोमेंट, जिस क्षण आपके अंदर से, आपके मन से, आपके सामने से या आपके अंदर से जो प्रार्थना निकलती है, उसी समय वो परमेश्वर बिल्कुल ठीक आपके फेस के सामने आके खड़े, एंड ही लिसन टू योर क्राई। रिबो शबा लबा 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 शबा बाबा बाबा। I know it's not a prophetic meeting, Vishnu sir. God is directing me towards you. You are fasting for 40 days. This 40 days of fasting is going to change the course of your life and your ministry. Is breakthrough, 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 breakthrough. The things you are going to see which you have never seen or you never dreamt of. In the name of Jesus Christ. Ribau Shaba Labre Labu Sabara. Ibrontaha Lamash Shaba Labat Sehe Labu Shaba Laba Lamash. सो ये परमेश्वर इतना वास्तविक है, इतना सच्चा है, इतना सामर्थी है। ये परमेश्वर जो है हमारे बारे में क्या है, इतना 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 हमको प्रेम करता है, इतना वास्तविक है कि जैसे आप अपने आप को इससे पिंच करिए, है ना, उतना रियल आप अपने आप को फील करें ना करें, उससे भी कहीं ज्यादा वो रियल परमेश्वर। वन डे आई वॉज इन अ मीटिंग, एक सभा के अंदर में था, और उस सभा में जो प्रीचर वहां पर आए वो बैंगलोर से एक प्रीचर थे, और उनका जो फेस एक्सप्रेशन था, द वे ही एक्सप्रेस दैट थिंग, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात को बोला, उन्होंने कहा कि जब उनको प्रीचिंग के लिए बुलाया गया, ही इज अ वेरी फेमस नेम, सो जब उनको प्रीचिंग के लिए बुलाया गया, सो जब वो स्टेज के ऊपर आए, एंड ही मेड वन स्टेटमेंट, उन्होंने एक स्टेटमेंट को कहा, it was very difficult for me to come out from the presence. I struggled to come out from the presence. मेरे लिए बड़ा कठिन था कि मैं प्रभु की उपस्थिति से बाहर निकल कर। प्रियो, जिस परमेश्वर के बारे में आपसे मैं बात कर रहा हूं, वो इतना वास्तविक है, इतना प्रेम करने वाला, इतना हमारे निकट आन रहने वाला परमेश्वर। और ये परमेश्वर हम पर बहुत खुश रहता है, और ये परमेश्वर कभी कभी हमसे गुस्सा भी हो जाता। एक बहुत बड़ा नाम है, आपको जानते हैं, आप सब जानते होंगे, बेन हिन, जिनके बारे में आप सब जानते हैं। एक बार ऐसे ही हुआ कि वो किसी एक जगह पे क्रूसेड के लिए गए, और जब क्रूसेड के लिए गए, वो उस जगह पे जब गए, वहां पे अपने किसी रिलेटिव से 30 इयर्स के बाद वो मिले। वो उनके कजन थे, और 30 इयर्स के बाद, 30 साल के बाद जब उनसे मिले, तो जैसे वो खाने की टेबल पे बैठे, होली स्पिरिट ने उनको टैग किया और इस बात को कहा कि बेनी, तुम ऊपर कमरे में आ जाओ। बेनी हिन ने बोला कि प्रभु, मैं तो अभी 30 साल के बाद अपने बहन से मिल रहा हूं, अभी हम खाने की टेबल पे बैठे, बस मैं खाना खा करके मैं आपके पास आता हूं। और उन्होंने जल्दी खाना खाया, और खाना खा के जैसे कमरे में
घुसने लगे और वो प्रभु की उपस्थिति में जाने लगे। बहुत देर तक होली स्पिरिट ने उनसे बात, एंड होली स्पिरिट सेड, आई एम अपसेट। सो क्या मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, वी आर नॉट हियर टू डू वन हैव अ जूम मीटिंग, की जूम मीटिंग हो जाती है, उसमें कितने लोग जुड़ते हैं, कितने लोग उसमें सुन रहे हैं, कितने लोग खाना बना रहे हैं, कितने लोग अपने कामों में लगे हुए हैं, है ना। इसलिए हम लोगों ने जूम मीटिंग को नहीं किया। बट वेन एवर वी गेट एन अपॉर्चुनिटी, जब भी मुझे और आपको अवसर मिलता है कि प्रभु की उपस्थिति में आने का, ये परमेश्वर हमारे हृदयों से, हमारे मनों से बातचीत करता है। मैं अपने टेक्स्ट के ऊपर आना चाहता हूं। हमें जो टॉपिक दिया गया वो टॉपिक ये है, गॉड फेयरिंग जनरेशन। परमेश्वर एक ऐसी पीढ़ी को खड़ा करना चाहता है जो परमेश्वर का भय। और यहां पर एक व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं जिसके विषय में परमेश्वर खुद से टेस्टिमनी। वर्स 1 में लिखा, उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मान और बुराई से दूर रहे। सो हम जब इसके बारे में बात करते हैं, परमेश्वर के भय मानने के बारे में, बाइबल इस बात को लेकर के बहुत ही क्लियर है। परमेश्वर का भय मानने का मतलब ये, फर्स्ट चीज ये है कि पहले आप उसको रिस्पेक्ट करें, और दूसरी बात ये है कि वो परमेश्वर जो हमारे जीवन के लिए कहते हैं, उस बात को हम अपने जीवन में एक्सेप्ट करें। हम ऐसे डरते नहीं, अरे हमें मार देंगे, अरे हमारे पर आग फेंक देंगे, या हमारे पर हमारे हमारे बच्चों को मार देंगे। ये वो परमेश्वर नहीं, बल्कि ये परमेश्वर वो परमेश्वर है कि जो कुछ बोलता नहीं, लेकिन जब हम उसके सामने आते हैं, उसकी महानता को देखते हैं, उसकी पवित्रता को देखते हैं, उसके नियरनेस में आते हैं, हम खुद ही सरेंडर हो जाते हैं। बिकॉज ही इज द वन एंड ओनली माइटी गॉड, क्योंकि वो ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर, उसको छोड़ और कोई नहीं। सो हमारे अंदर हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं, हाथ उठाओ, सर झुकाओ, सर पे दुपट्टा डालो, ये करो वो करो, नो 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 नो। As soon as we think of God, as soon as we come before His presence, ये हमारे अंदर से ऑटोमेटिकली। एंड द सेकेंड थिंग इज, जो वो हमारे जीवन के लिए प्लान करता है, उसको हम यस, उसको हम हाँ। हो सकता हमारे लिए वो चीज बहुत डिफिकल्ट हो, लेकिन हम हर बात में जो उसकी इच्छा है उसके लिए उसको यस। दैट इज कॉल्ड हियरिंग गॉड। और परमेश्वर एक ऐसी ही पीढ़ी को अपने लिए चाहता। अब मैं अपने टेक्स्ट के ऊपर आना चाहता हूं। मैंने तो एक टॉपिक दिया है कि फिट फॉर द फाइट, वो लोग जो कि लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आमेन। और यहां पर स्टोरी इस तरह से शुरू होती है। आप सबको इस अय्यूब की कहानी मालूम है कि किस तरीके से फर्स्ट चैप्टर के अंदर आप देखें, इस व्यक्ति के बारे में ऐसा लिखा, ही वॉज अ मैन ऑफ प्रेयर, ही वॉज अ मैन ऑफ फेथ, ही वॉज अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी, एंड ही वॉज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक ऐसा व्यक्ति, प्रार्थना करने वाला, खरा व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति, विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति। और आज के युग में कहा जाए सो बहुत ही प्रॉस्परस व्यक्ति, समृद्ध व्यक्ति। उसके भेड़ बकरियों को देखिए, उसके उसके सर्वेंट्स को देखिए, उसके रिचेस को देखिए, उसके एसेट को देखिए, उसके पास जो जानवर है उनको देखिए, उसके उसके पास जो कहना चाहिए कि दास दासी, उनकी गिनती करिए, उसके पास धन संपत्ति देखिए,
उसके बाद भूमि देखिए, और क्या है, जो भी जायदाद है, सब चल अचल संपत्ति, सब कुछ इसके पास। और बहुत अच्छा इसका जीवन, ओ गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। लेकिन एक बड़ी खूबसूरत बात यह है कि जिसके साथ में परमेश्वर है, वो व्यक्ति परमेश्वर के हाथों में पूरी तरीके से सुरक्षित। कोई शत्रु, कोई शैतान, कोई दुष्टात्मा, कोई नरक की ताकत आपकी तरफ आंख उठा के देख नहीं सकती। और मैं आपको बताऊं, आपको देख नहीं पाए अगर आप और मैं इस परमेश्वर का भय मानते हैं। आप और मैं इस परमेश्वर के वचन को या उसकी इच्छा को अपने जीवन के अंदर पूरा। एनिमी वॉज नॉट एबल टू लोकेट, जो शत्रु इसको लोकेट नहीं कर पा, उसके जीपीआरएस में अय्यूब का घर दिखाई नहीं दे रहा। और ऐसा लिखा कि एक दिन परमेश्वर के पुत्र जब वहां क्या है इकट्ठा हो रहे थे, उनके बीच में शैतान। और तब परमेश्वर उससे कहते हैं, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? और वहां पर सेटन परमेश्वर को एक रिप्लाई करते हैं, अरे आपने उसको इतना ब्लेस किया है, इतना प्रोटेक्शन दे रखा है, इतना सुरक्षा दे रखी, इतनी आशीष दे रखी है, इसीलिए तो वो आपके भजन गा रहा, इसीलिए तो वो आपके पीछे है। ओ सॉरी टू से दिस, आज बहुत से लोग यीशु के पीछे इसीलिए आते कि क्या हमें यीशु से मिल सके। आज विश्वास हमें पाने का बहुत, हमारा विश्वास अब्राहम के विश्वास की तरह हो सकता है। लिखा कि अब्राहम ने विश्वास के द्वारा क्या है, उस इसहाक को प्राप्त। बहुत से लोग ऐसे हैं, और मैं आपके विश्वास पे क्वेश्चन नहीं करता। आपने विश्वास के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त किया, लेकिन जब वही परमेश्वर दोबारा हमारे विश्वास के टेस्ट ले जो हमने परमेश्वर से प्राप्त किया है, हमसे कहता है कि मेरे हाथ में उसको दोबारा वापस दे दो, तब हम डिनाई। अब्राहम ने विश्वास से अपने पुत्र को प्राप्त किया। परमेश्वर ने कहा, ठीक है, मैंने देख लिया तेरा विश्वास, विश्वास से तूने पा तो लिया है, अब मैं तेरे विश्वास को और टेस्ट करना चाहता हूं, जो तूने मुझसे पाया मेरे हाथ में वापस दे। बाइबल कहती कि अब्राहम एक मिनट भी हिचका नहीं, जो परमेश्वर से पाया उसको परमेश्वर के सामने लाया। सो यहां पर ये व्यक्ति के बारे में इस तरीके से लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने शैतान से कहा कि जा, तू उसको जाके जो तुझे करना है उसको कर ले, बस उसके प्राण को तू छोड़। यहां से मेरा पहला पॉइंट शुरू होता है। यहां पे अगर आपने पढ़ा 13वें पद से पढ़ना शुरू किया और आप जो है 19वें पद तक आए, आप देखिए एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक डिजास्टर, डिस्ट्रक्शन, विनाश। पूरी तरीके से कहना चाहिए कि किसी को जैसे नाश करने के लिए सत्यानाश का झाड़ू जिसके ऊपर चला दिया है, उसका सब कुछ खत्म। मैं आपको एक बात से बताना चाहता हूं, मसीह जीवन ऐसा ही है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि एक आशीष के लिए आप धन्यवाद नहीं कर पाए, दूसरी आशीष आपके जीवन में, दूसरी आशीष आप धन्यवाद भी नहीं कर पाएंगे, तीसरी आशीष आपके जीवन में आ जाएगी। तीसरी आशीष को धन्यवाद नहीं कर पाएंगे, चौथी आशीष आपके जीवन में आ जाएगी। और कभी ऐसा भी हो सकता है, एक तकलीफ खत्म होने का नाम नहीं लेगी, दूसरी तकलीफ आपके ऊपर आ जाएगी। दूसरी तकलीफ खत्म नहीं होगी, तीसरी तकलीफ आपके ऊपर आ जाएगी।
तीसरी खत्म नहीं होगी, चौथी आपके ऊपर आ जाए। और उस समय आप कहेंगे, प्रभु मैं तो उपवास कर, मैं तो प्रार्थना कर, मैं तो दशमांश देता हूं, मैं तो प्रभु के काम के लिए सबसे ज्यादा देता हूं, मैं तो प्रभु के काम के लिए सबसे ज्यादा जाता हूं, मैं तो किसी भी तरीके से किसी पाप में, बुराई में, किसी गलत काम में मैं तो लगता नहीं हूं। और ये मेरे साथ क्या हो रहा है प्रभु? ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है प्रभु? सबकी शादी हो जा रही, मेरी शादी क्यों नहीं हो पा रही? सबके बच्चों की फीस पे हो जा रही, मेरी फीस क्यों नहीं पे? सबकी सरकारी नौकरियां लग जा रही, मेरी क्यों नहीं लग? सबके घर के लोग उद्धार पा जा रहे हैं, मेरा पति उद्धार क्यों नहीं पा? मेरी पत्नी उद्धार क्यों नहीं पा रही? मेरा बच्चा नशा क्यों नहीं छोड़ पा रहा? ओ गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस, लॉर्ड व्हाई मी? कब तक मुझे इस प्याले को पीते रहना? बजाय मेरे जीवन में कुछ अच्छा दिखाई दे, मैं इस बात को देखता हूं कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक मेरे जीवन में समस्या। जिस चीज के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बजाय कि वो चीजें ठीक हो, वो और भी बिगड़ती हुई चली जा रही, मेरे कंट्रोल से पूरी तरीके से बाहर चली जा रही। और यहां पर एक एग्जाम्पल है जिसके लिए खुदा खुद गवाही, इस पृथ्वी भर में एक ऐसा व्यक्ति। सो क्या एनकरेजमेंट इससे हम, क्या एनकरेजमेंट इससे? आप कहेंगे पास्टर साहब मैं इस मीटिंग में जुड़ा हुआ हूं, मैं इस मीटिंग में जुड़ी हुई, आपने मेरे नाम को तो नहीं, आपने मेरे लिए कोई भविष्यवाणी नहीं। मैं 3 दिन से मीटिंग में बैठ रहा हूं, मेरी समस्या वैसे की वैसी ही है। क्या मेरे जीवन में कोई गुड न्यूज होगी? क्या मेरे जीवन में कुछ अच्छा होगा? मैं आपसे इस बात की प्रोफेसी करना चाहता हूं, आपके जीवन में अच्छा हो, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना। मैं बहुत ही 3 बेसिक पॉइंट आपको बताता हूं इस अय्यूब की स्टोरी से। इन सारी बातों के बाद, ओ माय गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, कोई वर्स 20 का जो फर्स्ट फ्रेज है हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ दे। चैप्टर 1 वर्स 20। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ बस बस सिर बस बस मुंडा। बस 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 बस, वेट 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 वेट। तब अय्यूब, तब अय्यूब उठा। उठा। व्हाट इज रिटन इन इंग्लिश? Then Job arose. Then Job arose. अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, then you are fit for it. Then Job arose. विष्णु सर, ये बॉक्सिंग का फाइट है। आमेन। आप ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जहां पर आप शैतान को चैलेंज करके कहते हैं, अरे तू जितना, तेरे को ताकत लगानी है, तुझे जितना कुछ करना है तू करके देख, और भी तेरे पास कुछ बच गया है तो उसको भी तू करके दे। और जो तब अय्यूब, इतना सब होने के बाद भी एक के बाद एक, उसके जानवर, उसकी जमीन, उसके खुद की सारी संतानें, उसकी सारी धन संपत्ति, सब कुछ
के बाद एक, ये ऐसे है कि जैसे बॉक्सिंग के रिंग में आप खड़े हैं, आपको जो है अपर कट मारा गया, आपके पेट में मारा गया, आपको लेफ्ट से मारा गया, आपको राइट से मारा गया, सब तरफ से, इधर से इधर से। और जो बॉक्सर सामने अपोनेंट है वो बिल्कुल खड़े होने का मौका नहीं दे रहा है, और आपको एक तरीके से, पूरी तरीके से क्या कर दे रहा है, जैसे आपको बिल्कुल जमीन पे गिरा दिया। और उसको ऐसा लगता है कि आप अपने विश्वास की अंतिम श्वास को ले रहे हैं। बट माय गॉड, माय बाइबल सेज, इन सब बातों के बाद में अय्यूब उठा। Oh, glory to Jesus, Father, in the name of Jesus Christ. ब्रदर डेविड एक बड़ी अच्छी स्टोरी को इस मैसेज के स्टार्ट में कह रहे थे कि मैं तो सर अंदर से पहले ही खड़ा हूं। आप मुझे बैठने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं क्या हूं, मैं अंदर से पहले से। आप कितना बाहर से बोलते रहो बैठ जाओ बैठ जाओ, मैं आपको दिखाने के लिए बैठ जाता हूं, लेकिन मैं अंदर से खड़े। ओ फादर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये एक प्रोफेटिक वर्ड जो है आप सब के लिए है, हम सब के लिए। हो सकता है कि शत्रु ने ये सोचा कि मैंने इसको गिरा दिया है, मैंने इसको इतने पंच मारे हैं, अब ये क्या जिंदगी में कभी उठ नहीं पाएगा, इस एरिया में ये उठ नहीं पाएगा, इस क्षेत्र में ये उठ नहीं पाएगा, इस क्षेत्र में ये कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन माय गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, by the strength of God, by the power of God, by the grace of God, we will rise up again. Amen. हम अय्यूब के समान फिर से उठ खड़े। Amen. हम उसी जगह पे जहां में ऐसे लगता है कि शत्रु ने हमें सबसे ज्यादा पंच मारे हैं, उसी जगह पर उसके सामने। सो अगर आप उस फाइट के लिए, उस स्पिरिचुअल फाइट के लिए, उस फेथ फाइट में सस्टेन करना चाहते हैं, चैंपियन बनना चाहते हैं, सो आपको एक काम को ये करना है कि उस जगह पर उससे उठना। मुझे एक बहुत बड़े प्रभु के दास के बारे में वो स्टोरी याद आती है। स्टीव हिल, जो बहुत ही फेमस नाम हुआ यूएस के अंदर, एक बहुत बड़े इवेंजलिस्ट हुए, जिन्होंने पेंसिकोला में जो रिवाइवल को लेकर के आए। एंड ही वाज अ ड्रग एडिक्ट। वो क्या है, स्मैक वगैरह वो सब को लेते थे। और जब वो प्रभु में आए तो प्रभु ने उनको क्या है, छुटकारा दे दिया। एक बार ऐसे ही हुआ कि जब वो किसी कंट्री के अंदर, कंबोडिया, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कंबोडिया में गए, और वहां पर जब गए तो उन्होंने देखा कि एक लड़का जो है, छोटा लड़का, क्या वो ड्रग्स के पैकेट को बेच रहा। और ये बहुत बड़े ड्रग एडिक्ट थे जिससे परमेश्वर ने इनको आजाद किया। सो उन्होंने उस लड़के को बुलाया। अब वो बहुत बड़े इवेंजलिस्ट हैं। उन्होंने उस लड़के को बुलाया और उसको पैसे दिए और बोला कि इस पुड़िया को मुझे दो, इस सैशे को मुझे दो। वो ड्रग्स के सैशे को लिया और उस सैशे को लेकर के अपने हाथ में यूं लिया और उसको ऐसे मसला और कहा, एक दिन तू मुझे ऐसे मसलती थी, लेकिन आज मैं यीशु मसीह के नाम से तुझको मसल, तेरा मेरे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं होने सकता। ओ माय गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। जिन परिस्थितियों में, ओ गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस, जिन परिस्थितियों में आप सोचते हैं कि शत्रु ने आपके ऊपर इतने अटैक किए, जहां आप खड़े नहीं हो सकते, परमेश्वर वहीं पर चाहता, परमेश्वर चाहता है आप वहीं पर। मुझे एक इलस्ट्रेशन याद आता है, असेंबलीज ऑफ गॉड के अंदर जो श्रीलंका के जो सुपरिटेंडेंट हैं, बहुत फेमस नाम है, फेमस प्रॉफिट। एक बार ऐसा हुआ कि उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि जाइए, अपने पति से, अरे जाइए जरा सा दूध लेकर के सुबह आई। सो वो क्या है, लुंगी पहन करके, और वो इतने फेमस सुपरिटेंडेंट है, बहुत बड़ा चर्च है, बहुत फेमस नाम है, लोग सब जानते हैं। सो वो सुबह क्या है, अपने घर के सामने जो दूध की शॉप में जाके, मिल्क की शॉप में, ही वॉज गोइंग टू टेक द मिल्क। और जब दूध की दुकान में जाकर के दूध लेने जाने लगे, सो एक छोटा सा नाला उसके बीच में था, ड्रेनेज बीच। सो जब उसको पार करने लगे, किसी तरीके से वो लुंगी फंस गई या पैर फंस गया, वो वहीं पर गिर गया।
सो कुछ दो चार लोग वहां पर बैठे थे, दे स्टार्टेड लाफिंग। जब वो हंसने लगे तो इनको बहुत ही शेम महसूस हुआ, क्योंकि वो बहुत फेमस व्यक्ति, और उनको इतना शेम फील हुआ, इतना गुस्सा भी आया। वो दूध आगे लेने के लिए नहीं गए, वापस घर में आए और अपनी वाइफ से इस बात को कहा, आज के बाद तुम मुझसे दूध लेने के लिए कहोगे नहीं। तुम्हें दूध लेना है तुम खुद जाके लेकर के आओगी या बच्चों को भेजोगी, मुझे बिल्कुल तुम दूध लेने के लिए बोलोगे। आपको मालूम है घर के आदमी लोग कैसे रिएक्ट करते हैं ना। सो क्या हो गया कि घर में आके बैठे 5 मिनट तक बहुत गुस्सा, वाई लॉर्ड वाई लॉर्ड वाई लॉर्ड, ऐसा आपने करवा दिया, बताइए पब्लिक के सामने करवा दिया, और ये वो करके बोल रहे थे। थोड़ी समय के बाद में होली स्पिरिट ने कहा काम डाउन काम, और फिर होली स्पिरिट ने कहा, उनका जो भी नाम है, मान लीजिए विल्सन मैं कहता हूँ, विल्सन यहां से उठो और फिर जाके दूध लेके। सो बीवी की बात को तो एक बार मना किया जा सकता है, लेकिन होली स्पिरिट की बात को कैसे मना किया जा सकता है। सो ही गॉट, एंड दिस टाइम अगेन ही विद द सेम, उसी जगह से गए, उसी नाले को पार किया, वहां से दूध लेके आए, फिर नाले को पार किया। परमेश्वर की आत्मा ने कहा, जहां से तू गिरा है, जहां पे तू गिरा वहीं पे बैठ कर रुके, उठ खड़ा। परमेश्वर, आई डोंट, होली स्पिरिट आपसे इस बात को कहना चाहता, प्रभु का आत्मा आपसे इस बात को कहना चाहता, शत्रु ने आपके ऊपर हमला किया या आपने अपने आप को शत्रु के हाथ में जिस जगह पर आपको ऐसा लगता है कि आप वीक में, आपने अटैक के पर अटैक को, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, वहां परमेश्वर चाहता है कि आप उठ खड़े और परमेश्वर की महिमा। देखिए, इस जोब के खिलाफ में कोई आदमी, कोई शत्रु नहीं है। गॉड हिमसेल्फ अलाउड Satan to go and test Job। मेरी दूसरी बात जिसको मैं जल्दी से बताना चाहता हूं, क्योंकि टाइम ज्यादा बचा नहीं है, इसके 20वें पद में लिखा है, और उसने बागा फाड़ा, सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, ओ होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। And the second word is, first is got up or get up, and the second word is grieve। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, एक मसीह व्यक्ति किस बात पे हंसता है और किस बात पे रोता है, ये उसकी स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, ये उसकी आत्मिकता को दिखाता है। किन बातों पर आपको हंसी आती है और किन बातों पे आपको दुख, और जब आपको दुख होता है तो आप कैसे अपने दुख को व्यक्त करते हैं, आप अपने दुख को कैसे व्यक्त करते हैं, हाउ यू एक्सप्रेस यू ग्रीफ एंड वेयर यू एक्सप्रेस यू ग्रीफ। कई बार वो ग्रीफ इतना ज्यादा हो जाता है कि हम बिटरनेस से भर जाते हैं। हम बाहर से कहते हैं, प्रभु मैंने इस व्यक्ति को क्षमा कर दिया, अब मेरे मन में इसके लिए कुछ भी नहीं, बट मैंने एक लेसन सीख, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू दिस, आई एम गोइंग टू टॉक टू दिस, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू दिस सर्वेंट। मैं इतना हर्ट हो गया हूं, मैं इतना परेशान हो गया, इतना दुखी हो गया, इस व्यक्ति ने ऐसा कह दिया, अब मैं क्या है चर्च नहीं, अब मैं प्रभु के पीछे नहीं जाऊं। और ये स्टोरीज आप कितनी भी सुनते रहते हो, यू कैन फाइंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल व्हाई दे लेफ्ट द चर्च। किसी ने हमसे ऐसे बोल दिया, किसी ने हमें पानी नहीं पिलाया, किसी ने हमें ऐसे रिस्पेक्ट नहीं दी, वैसे नहीं दी, ये नहीं दी, बट सी दिस मैन, जिसके जीवन में सब कुछ परमेश्वर के अनुसार,
और उसके जीवन में सब कुछ उसका लुट गया, उजड़ गया, बर्बाद हो गया, वहां पर वो व्यक्ति क्या है, उठता है और उसके बाद अपने दुख को व्यक्त कर। मैं आपसे बताऊं, आप अपने दुख को व्यक्त करने के लिए आजाद। यू हैव फुल फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर ग्रीफ। गॉड विल नेवर गेट अपसेट जब आप अपने दुख को उससे। ये व्यक्ति देखिए अपने दुख को व्यक्त करने के लिए किसी इंसान के पास नहीं जाता। ओ रिबा शबा बाबा 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 बाबा। आई एम क्लियरली सी, परमेश्वर एक स्पिरिचुअल हीलिंग को लेकर के आया। परमेश्वर एक स्पिरिचुअल हीलिंग को लेकर। जिस समय मैं बाइबल कॉलेज के अंदर पढ़ता था, और जिस बाइबल कॉलेज के अंदर मैं पढ़ता था, अचानक उस बाइबल कॉलेज के अंदर जो टीबी टीबी की जो सिकनेस है वो एकदम से स्प्रेड होने। 5-6 बच्चे एकदम से टीबी के पेशेंट। सो टीचर्स परेशान हो गए, कितने बच्चों को हमें वापस भेजना पड़ा। और उसी समय ऐसा हुआ कि एक प्रॉफिट वहां पर आए, और जब वो प्रॉफिट वहां पर आए, सो जब वो चैपल में प्रार्थना करने लगे, सो उस समय 2 बच्चे ऐसे थे जो उस समय टीबी से अफेक्टेड। और तब उन्होंने एक प्रोफेसी को, और प्रोफेसी को उन्होंने ये कहा कि यहां पर मैं एक स्पिरिट को देखा। उनको कुछ भी मालूम नहीं। लोगों ने पूछा क्या स्पिरिट है, सर क्या क्या कौन सा? उन्होंने कहा, व्हाट आई एम सीइंग हियर, द साउथ इंडियन एंड द नॉर्थ इंडियन spirit apps. People are fighting in the name of South India. इसके वजह से इस कॉलेज के अंदर ये अब बीमारी। कॉलेज ने क्या किया, फास्ट को अरेंज, उपवास प्रार्थना को, और हम सब ने एक दूसरे से मांगा उस स्पिरिट को वहां से। उसके बाद कोई भी बच्चा अपने बाइबल कॉलेज की पढ़ाई को आधे में छोड़ कर गया। एट टाइम्स वी कैरी द, ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें। आप और मैं अपने जीवन में ऐसी चीजों को लेकर चल सकते हैं जिसमें हम गुस्से से, क्रोध से भरे हो सकते। वो गुबार हमारे अंदर भरा हुआ हो सकता। किसी को ये बात पता नहीं चलेगी किसके खिलाफ आप क्या सोच रहे हैं, कितना खराब सोच रहे हैं, कितना गुस्से में सोच रहे हैं, कितने जलन से आप भरे हुए हैं, लेकिन केवल आपको मालूम, और वो परमेश्वर। जब आप हर्ट होते हैं तब आप जाके दूसरों को हर्ट करने। अगर आप उसको डील नहीं करेंगे, आप दूसरों को हर्ट करने। परमेश्वर ये चाहता है जो भी आपका ग्रीफ, टेल टू गॉड एंड आस्क हिज हेल्प। परमेश्वर से कहे, प्रभु आप मेरी साथ, मैं इस कड़वाहट से, मैं इस गुस्से से, मैं इन बातों से बाहर आ। इसलिए कई बार आप बहुत रूड भी, कई बार इजीली आप इरिटेट हो जाते, बहुत जल्दी आप अपने टेम्पर को लूज कर, कई बार इतने ज्यादा एंगर से आप भर जाते हैं, यू यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर योर, यू स्पीक अननेसेसरी एब्यूसिव। कई बार मुंह से नहीं बोल करके अंदर ही अंदर सोच करके उस पॉइजन। अगर आप उस फाइट, उस फेथ फाइट के लिए, स्पिरिचुअल फाइट, उसमें विक्ट्री को देखना चाहते हैं, उस ग्रीव के ऊपर आपको क्या है, उस सामर्थ्य को प्राप्त करना, उस अनुग्रह को। यहां पर उस व्यक्ति ने अपनी समस्या के लिए किसी को दोषी टुवर्ड्स,
अपनी समस्याओं में परमेश्वर से दूर ना भागें, परमेश्वर की तरफ भागें। डू नॉट रन फ्रॉम गॉड बट रन टूवर्ड्स। व्हेन यू फेस एनी काइंड ऑफ हर्ट, एनी काइंड ऑफ बिटरनेस, एनी काइंड ऑफ एनीथिंग जिससे आपको दुख पहुंचता है, उसको क्या है, प्रभु के पास। मेरी तीसरी और अंतिम बात जिसको मैं बताना चाहता हूं, goes to the haters, get up, grieve and goes to the haters। इसको हिंदी में ऐसा कहते हैं, कुछ बातों को अपने जीवन में आपको इग्नोर करना सीखना। Some of the things in your life you have to learn how to ignore, then you will be fit। एक पद को जल्दी से पढ़ेंगे, इसका 13वां अध्याय उसके 1 से 5 पद को जल्दी से देखिए क्या लिखा। आइए उसका 13वां अध्याय उसके 1 से 5 में से लिखा हुआ है, सुनो मैं यह सब कुछ अपनी आंख से देख चुका हूं और अपने कान से सुन चुका हूं और समझ भी चुका हूं। जो कुछ तुम जानते हो वह मैं भी जानता हूं। मैं तुम लोगों से कुछ कम नहीं, मैं तो सर्वशक्तिमान से बातें और मेरी अभिलाषा परमेश्वर से वाद विवाद करनी। I will talk to my God. I don't want to talk to you people। कुछ लोग आपके जीवन के अंदर हमेशा ऐसे रहें, आप कितना भी अच्छा करोगे, बढ़िया करोगे, सही करोगे, वो आपके खिलाफ में उल्टा सीधा बोलते रहे। इसलिए यीशु ने कहा, जब उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा तो तुम्हें क्या छोड़ा। लेकिन अगर आप ऐसे जन नहीं बनेंगे, ऐसे परमेश्वर के जन बनेंगे नहीं, ऐसे जवान बनेंगे नहीं कि जो सब बातों पर अपने कान को नहीं, बल्कि वो हर बातों में परमेश्वर के पास सीख, और उनको ये मालूम है कि परमेश्वर ही हमारी बातों को समझता है। परमेश्वर ने ही हमें चुना है, परमेश्वर ने ही हमें हमें बनाया, परमेश्वर ही हमें सबसे ज्यादा समझता है। अगर हर बातों पर आप अपने कान को देने लगेंगे, कि आपने बहुत बढ़िया वर्शिप लीड किया, किसी ने आकर के बोला वर्शिप तो ली, ठीक तो किया था, लेकिन वो गाना थोड़ा सा आप सही से सुर में गा नहीं था। प्रीचिंग तो बहुत बढ़िया किया था, लेकिन ये चीज थोड़ा सा ऐसा। और ये सब ऐसे लोग हैं जो जॉब के फ्रेंड हैं, वो अपने आप में बहुत वाइसफुल लोग हैं। But Job understood one thing, right? For each and everything, he doesn't have to give his। अगर लोगों के ओपिनियन पर आप चलना शुरू कर देंगे, लोग क्या बोलते हैं उसके हिसाब से अपने लाइफ को जीने की कोशिश करेंगे, आप मसीह जीवन में कभी भी आगे बढ़। अरे भाई प्रार्थना करने से इतना क्या फायदा है, अरे भाई इतना उपवास करने से क्या फायदा है, अरे इतना चर्च में जाकर के क्या फायदा है, अरे इतना तुम चर्च में जाते हो तुम्हारे घर का ये व्यक्ति तो बदला नहीं, अरे तुम चर्च में जाते हो तुम्हारे साथ ऐसा तो हुआ नहीं, वैसा तो हुआ नहीं। इतना तुम प्रभु प्रभु कहते हो तो तुम्हारा प्रभु तुम्हारी प्रार्थना क्यों सुन रहा है। प्रभु सबकी प्रार्थना सुन, लेकिन उसका एक समय, और उसके समय का वेट करेंगे। इस अय्यूब के बारे में ऐसा लिखा हुआ, इसका सब कुछ चला गया, लेकिन परमेश्वर सब कुछ इसके जीवन में डबल।
एक सेइंग हम बोलते हैं, डबल फॉर ट्रबल। जितनी समस्या इसके जीवन के अंदर आई, उस सब के बीच में परमेश्वर क्या है, इसके जीवन में दूनी आशीष। मैन हु feared, the man who respected God, the man who accepted the will of God in his life। एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मान, हर बातों के बीच में वो परमेश्वर के प्रति क्या है, उस आदर को, जो परमेश्वर के लिए आदर उसके मन में था, उस आदर को वो आखिर। इसके बाद आपको स्टोरी मालूम है कि सैतान ने इतना ही उसको नुकसान नहीं पहुंचा, उसके बाद दिखा कि उसके पूरे शरीर को फोड़े। आप ऐसा हो सकते, दूसरों की तकलीफ सुनकर के फिर भी मजबूती से खड़े रह सकते, लेकिन जब आपके ऊपर तकलीफ आती है तब बहुत मुश्किल होती है। लेकिन उन सब बातों के बीच में ये अय्यूब उठ कर देखा, मैं उस जगह से खड़ा हूं, अपने दुख को परमेश्वर के सामने व्यक्त किया। तीसरी बात, परमेश्वर की तरफ अपनी आंख को लगा। बहुत लोगों ने परामर्श दिया, बहुत लोगों ने बताया इसके वजह से तुझको समस्या, उसके वजह से समस्या, ये वह कारण, वो कारण है। उन सब बातों को ध्यान दिया। इसके चैप्टर 42 में, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं, एक बहुत ही अच्छी बातों को वो कहता है 5th वर्ष में, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, अब मेरी आंखें तुझे देख। मेरी आज की संध्या ये प्रार्थना कि ये परमेश्वर आपको अपने जीवन की इस परिस्थिति में उठ करके खड़े होने का, परमेश्वर आपको ऐसा अनुग्रह दे कि आप अपने दुख, अपनी तकलीफ, अपने संघर्ष को मनुष्यों के सामने, परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर आपको सहायता करे, तमाम उस नकारात्मक बातों को नजरअंदाज कर, इग्नोर करके परमेश्वर की तरफ सुनने के लिए, परमेश्वर की तरफ देखने के लिए अपने आप, और फिर आप उस परमेश्वर को अपनी परिस्थिति में देखने पाए और उसके द्वारा आशीषित। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड बी विद यू। दिस इज माय हम्बल। ये जो परमेश्वर है, आपका परमेश्वर बने रहने पाए और उसके पीछे विश्वास, उसका भय माने, उसका आदर करें, उसकी इच्छा को अपने जीवन में। परमेश्वर आपके जीवन सारी आशीषों को ला करके रख देगा जो आपने सोचा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओवर टू पास्टर विष्णु। David, you, you sir. can take the time, David. Thank you, sir. We are really blessed by today's message, and I believe all the people who are sitting in our Zoom, we all are really blessed. मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग जो जूम में जुड़े हुए हैं, आज के वचन के द्वारा आप सभी लोग आशीषित हुए हैं। यदि आप सचमुच ब्रदर यदि आप सच में Yes. आशीषित हुए सर हैं, सर मैं बात करना चाहता हूँ सर। सर कौन? आप मेरा नाम बोल के पुकारे सर, महेश बोल के सर। स्टार्टिंग में मैं हूँ सर। Okay, God bless you. Is there any testimony for my dear Mahesh brother? Is there any testimony? Then you can share. मेरा नाम बोल के पुकारे सर। मेरा नाम महेश है सर। आपने बोला कि सेवा बढ़ेगा बोल के सर। मैं जो बात मैंने बोला वो आपके लिए उपयुक्त है, सही है आपके जीवन में। यस सर। ओके, 1 साल के अंदर परमेश्वर बहुत कुछ आपके जीवन के अंदर बदलने के लिए जा रहा है। आपके जीवन आमेन। में, आपकी सेवकाई के अंदर उसको रिसीव करिए, प्रभु के सामने नम्रता से चलिए, और जो आपके अगुए हैं उनकी बात सुन करके चलते रहिए। प्रभु आपको बहुत बढ़ाएंगे। आमेन आमेन। थैंक यू सर। थैंक यू सर आशीषित संदेश के लिए। साथ ही में आपने हमारे लिए प्रोफेटिक वर्ड को
आज शाम को हमारे बीच में आप लेकर आए, कुछ लोगों से आपने भविष्यवाणियों के द्वारा बातें किया, और मैं आशा करता हूँ में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आज के वचन के द्वारा आशीषित नहीं हुआ। हम सभी लोग आज के वचन के द्वारा आशीषित हुए। हम आपके आभारी हैं, हृदय से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। और हम चाहेंगे कि अगली बार जब भी ऐसा अवसर मिलता है, हम ऑनलाइन माध्यम से आपके साथ जुड़कर प्रभु के वचनों को सुनना चाहेंगे। थैंक यू सर। हम सभी आपको आभारी है, आपको धन्यवाद देते हैं। Thank you very much. आगे के समय कुछ देर मैं प्रभु के दास पास्टर विष्णु को देना चाहूंगा, वे हमसे कुछ बात करना चाहते हैं। Praise the Lord. Brother Vishnu, can I भाई leave? या सभी भाइयों बहनों, मेरा हिंदी थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन मैं क्या बोलना है वो आपको समझ आएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई thank to Wilson Pastor. I feel that it is a spiritual emphasis meeting. Okay, even though it was a youth retreat, but we feel like a spiritual emphasis meeting. Okay, my dear brothers and sisters, मैं 2 महीने के दो हफ्ते के पहले मैं प्रार्थना में था। वो प्रार्थना में प्रभु मुझे एक एक दुख दिया, मेरे अंदर में एक भार दिया। प्रभु ने बोला कि हमें बहुत सारा जवान लड़का लड़कियों को ये शैतान ने उसका जाल में फंसा है। इसका कारण ये है, हमें किसी ने प्रभु को भाई नहीं करता है। Nobody fearing God. Okay, then God talked to me. I mean, He is a living God. He is a God of judgment. Okay, वो न्याय करने वाला प्रभु है। हालेलुया। हमें एक बात आपको हमें 2-3 बात आपके सामने में मैं रखना चाहता हूँ। ओके, आपको याकूब को जानता है ना, याकूब, जेकब। हालेलुया। We know that from Jacob, the 12 tribes of Israel, everything came. Okay, लेकिन ये देखो, जेकब के सामने एक दिन उसका बच्चों, हालेलुया, झुंड होकर आया और एक क्लॉथ को दिखाया, हालेलुया, एक वस्त्र को दिखाया और बताया कि आपकी सन को, आपका पुत्र को एक जानवर ने पकड़ा है। हालेलुया, जानवर ने पकड़ा है। वो टाइम याकूब ने ऐसा रोया कि मेरा मेरा पुत्र मुझे मेरे साथ से गया है। ये देखो, हालेलुया, इसमें प्रभु का एक जजमेंट है। साल के पहले ये याकूब उसका बाप और भाई को धोखा दिया। हालेलुया, कैसे धोखा दिया? हालेलुया, एसाव करके, हालेलुया, एसाव के वस्त्र पहनकर आया और पिता को धोखा दिया। और हालेलुया, वो आशीष किसी के पास आने वाला था, एसाव के पास आने वाला था, एसाव को भी धोखा दिया। हालेलुया, ये परमेश्वर उसको हालेलुया उसके लिए माफ किया, लेकिन ये देखो, माफ करेगा लेकिन उसका आनंद फल होगा। हालेलुया, क्योंकि हमारा प्रभु एक जजमेंट प्रभु है। हालेलुया, ये देखो, और एक और बार बता रहा है। हालेलुया, शिमशोन को आप जानता है ना। हालेलुया, शिमशोन को प्रभु ने अभिषेक दिया, बहुत सामर्थ्य दिया, बहुत शक्ति दिया, सब कुछ दिया। हालेलुया, शिमशोन वो दलीला के घर जा रहा है ना, वो टाइम पे भी उसके अंदर आशीष था। हालेलुया, आमीन आमीन, हालेलुया, वो दलीले के गोद में बैठा था, वो टाइम पे भी उसके अंदर आशीष था। हालेलुया, आमीन। लेकिन वो कब पाप किया, वो टाइम उसके अंदर से आशीष निकल गया। हालेलुया, ये देखो, मेरा भाई और बहनों, हालेलुया, हम ऐसा जनरेशन में है जिस जनरेशन में कोई को प्रभु के पास साथ भय नहीं है, फियर नहीं है। हालेलुया, क्योंकि अगर आप प्रभु को भाई करता था, लेकिन देन आज की जमाने में बहुत सारा झूठी उपदेश नहीं फैलता है। हालेलुया, आप कौन है? वी आर द फाइटर्स हु हैज टू oppose all the false teachings।
ये देखो हालेलुया, ये शिमशोन ने हालेलुया हमें दलीला के घर में गया, सब कुछ गया। आपको जानता है ना, वो शिमशोन का आंख हालेलुया, वो आमीन 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 ही लॉस्ट हिज आईज, आमीन आंख आमीन आमीन नष्ट आमीन उसका आंख गया। क्यों हालेलुया? क्योंकि ये आंख उसको पाप के लिए आमीन आमीन हालेलुया अट्रैक्ट किया है। Hallelujah. This is the same eye he has, used for, for attracting Delilah. Hallelujah. He was to be supposed to be separated from those things, but he didn't separate it. Hallelujah. ये देखो, मेरा भाई और बहनों, हमारा प्रभु हालेलुया एक बहुत अद्भुतकारी प्रभु है, लेकिन वो जजमेंट करने वाला है। पौलुस ने कह रहा है whoever, whenever we are in the body, we have to we have to accept the punishment that are given by God. ये देखो, डेविड हालेलुया, डेविड हैज सिंड विथ बर्शेबा, बर्शेबा का साथ पाप किया। हालेलुया, पाप किया और वो प्रभु के उपस्थिति में आ गया और प्रभु को कह दिया, प्रभु आपका परिशुद्ध आपका पवित्र आत्मा को मेरे अंदर से नहीं लेना। क्यों हालेलुया? क्योंकि डेविड को जानता है, डेविड जानता है एक दिन हालेलुया डेविड को एक सैनिक उसे लेकर शाऊल का राजधानी में आ गया। वो टाइम डेविड ने देखा है अभिषेक किसी के अंदर था, वो जानने का टाइम वो कैसे क्या क्या करेगा। हालेलुया, because he saw that David has did many problems when Shaul, when the anointing has gone away from Shaul. Hallelujah. So ये देखो डेविड को क्या हुआ। हालेलुया, डेविड का सन हालेलुया उसके मारने के लिए उसके पीछे भागा। हालेलुया, और क्या हुआ उसका फ्रेंड्स हालेलुया सब कुछ उसके पास नहीं आना था, क्योंकि उसका पास उसके अंदर एक बड़ा बीमारी था। ये देखो प्रभु ने पाप क्षमा किया, लेकिन उसका आनंद फल वो डेविड भी हालेलुया उसका लाइफ में सह लिया। ये देखो my dear brothers and sisters, hallelujah, we have to be stand against the evil thoughts and evil thinkings and evil teaching against this generation. Okay, एक ऐसा पीढ़ी खड़ा करने के लिए प्रभु का भाई मानने का प्रभु का भाई मानने का पीढ़ी को खड़ा करने के लिए हमारे अंदर पहले वजन चाहिए, वजन आना है। हालेलुया, हमारे अंदर वजन आना है। जिस एक गलत संगति में आप जा रहा है, वो टाइम उसको वो वजन आपको कह दे हाँ ये गलत है, ये सच्चा नहीं है। ऐसा एक अभिषेक हम पाना है। हालेलुया, हमें कभी जगह में आपको देखो एक प्रभु का दास आ रहा है, वो फायर कहता है, सब कुछ सभी व्यक्तियों गिर जाएगा। हालेलुया, ये देखो अभी रिसेंटली विश्वास में आने वाला हमारा भाई बहनों को परिशुद्ध आत्मा क्या है वो नहीं पता है, पवित्र आत्मा क्या है नहीं पता है। मैं एक प्लेस में मैं गया और एक लड़की को प्रार्थना करने के लिए ऐसे आया, और ये लड़की हालेलुया जमीन पर गिर पड़ा। हालेलुया, क्योंकि ये देखो ये लड़की का माइंड में ये प्लानिंग है, जो प्रभु का दास मेरे पास आ रहे हैं वो टाइम में गिरना है। हालेलुया, वो टाइम में गिरना है, वो ऐसा प्लान करता है। इसलिए ऐसा एक पीढ़ी आ रहा है हालेलुया, वो पवित्र आत्मा को भी नहीं जानता है, पवित्र आत्मा का पावर को नहीं जानता है, वजन को नहीं जानता है। बस वो क्या करता है, कुछ कुछ एक्टिंग करता है। हालेलुया, मैं मिशन इंडिया YFT का पूरा की पूरा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को ये बात कह रहा है, हमको ऐसा नहीं बनना है, हमको एक आर्मी बनना है। हालेलुया, एक आर्मी खड़ा करना है जो प्रभु के लिए जीवन देना सकता है। हालेलुया, हालेलुया,
आमेन। वन मोर टाइम। आमीन। ये देखो आमीन, एक और बार बताएगा। हालेलुया। आमीन। जब पौलुस ने आमीन आमीन वो कारागृह में था, वो आमीन एक सभी सभी टाइम चिट्ठी लिखा था वो टाइम। हालेलुया। मुझे बहुत आमीन आमीन आश्चर्य हो गया, क्योंकि सभी टाइम आमीन पौलुस ने चिट्ठी लिखा टाइम सभी को आमीन आमीन। हालेलुया। एक देखा फ्रॉम द आमीन फादर एंड ग्रेट आमीन जीसस, यू आर यू बी यू आमीन लेट बी पीस अपॉन यू। हालेलुया। बिकॉज आमीन हालेलुया कलीसिया ये चाहता है हमें, क्योंकि मेरा अगुआ अभी अभी कलीसिया अभी अभी प्रेजेंट में है। आमीन वो जैसा आमीन अभी पत्र चिट्ठी आएगा, ओ मेरा आमीन मैं इधर थोड़ा दिक्कत में है, मैं इधर थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन हालेलुया पौलुस ने ऐसा चिट्ठी लिखा है। हालेलुया उस पर लिखा है आमीन आमीन हालेलुया प्रभु का आमीन पुनरुत्थान का शक्ति मुझे पाने के लिए मैं चाहता है, ऐसा एक पीढ़ी को खड़ा करना है। हालेलुया। सो आमीन 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 सभी को आमीन ये विनती करता है, सभी को भी एक ये बात कह रहा है, हमको एक ऐसा पीढ़ी खड़ा करना है भू जो प्रभु को भाई मानना। हालेलुया। हालेलुया। सो आई thank to all of my brothers and sisters who have joined I mean the 3 days, and I thank all the pastors and leaders and MIBC leaders, church pastors, and everywhere those who are joined in the platform. I mean, extremely, I am giving thanks, especially to Reverend Wilson, sir. I mean, your word is very powerful. Your word was very powerful. Hallelujah. And very, I mean, encouraging also. I mean, and once again, I am giving thanks to everyone. Hallelujah. I mean, thank you, I mean, for giving me this time. Thank you for joining. Hallelujah. Now, over to David. Thank you, Pastor Vishnu. We are really thankful for your leadership in organizing this 3 days meeting. And thank you for these concluding words. May God bless you and the ministries. आप सभी को जो इन 3 दिनों में हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपके आभारी हैं, आपको धन्यवादित है। प्रभु आपको और मुझे, हम सभी को बहुत आयत से आशीष दे। आप और मैं प्रभु में लगातार निरंतर बढ़ते रहे। 3 दिन का हमारा जो जूम मीटिंग है उसका रिकॉर्डिंग हमारे पास अवेलेबल है। जब भी आपके पास में फ्री समय रहे, आप वचनों को दोबारा सुने। प्रभु ने आपसे इन 3 दिनों में क्या बातें किया है, उन वचनों को आप स्मरण करते हुए प्रभु के निकट आए, प्रभु की नजदीकी में आए। और प्रभु सचमुच में इन दिनों में युवाओं को, आपको और मुझे, हम में से प्रत्येक जनों को बहुत आयत से उपयोग करने जा रहा है। आइए प्रार्थना के साथ में आज की इस जुम सभा को हम समाप्त करेंगे। शाम को जितने भी लोग प्रभु की संगति में जुड़े हुए हैं, प्रत्येक जनों को हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। हम सभी के ऊपर प्रभु के अनुग्रह, आशीष, भरपूरी को बहुत आयत से मांगेंगे। मिलकर हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में पास्टर लकी कुमार जी है। पास्टर लकी कुमार। Call David Lucas, sir. David Lucas, sir. I am not able to see, sir. It's in Bindu, inside Bindu Lucas. Okay. Sir, please unmute and lead us in prayer. I would request David Lucas, sir, to lead us in prayer and close this Zoom with. Sir, if you are joined, please lead us in prayer. Okay, then you call anyone. आइए अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु के दास पास्टर लकी कुमार जी है। मैं चाहूंगा आप हम सभी के लिए, आज के जुम के लिए धन्यवाद देते हुए अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू पिता। हालेलुया। धन्यवाद 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 ईश्वर राजा, तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। वह समय के लिए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं। खासतौर से परमेश्वर पिता, होली स्पिरिट तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के समय को चुना पिता, ताकि हम सब इकट्ठे होकर प्रभु तेरे दास के द्वारा प्रभु जो कुछ भी आपने प्रभु हमें बताया पिता, सब कुछ तेरी महिमा के लिए होने पाए प्रभु। सचमुच में जो भी प्रभु तेरे प्रिय दास प्रभु जो आज के सामने जो भी वचन को दिया है खुदा, प्रत्येक के जीवनों में जाए और परमेश्वर वो फल परमेश्वर होने पाए
खासतौर से इन दिनों में प्रभु, खासतौर से जवान भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इन दिनों में तेरे वचन को लेकर खड़े रहने वाले लोग ने पाए प्रभु, इन दिनों में बहुत ही पवित्रताई के साथ प्रभु आपको आदर देने वाले, आपका भय मानने वाले, आपकी आज्ञाओं को पूरा करने वाले पिता, एक ऐसा पीढ़ी खड़ा होने पाए जो पवित्र आत्मा को जानने पाए, उसकी सामर्थ्य को जानने पाए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर बहुत सारे लोगों को तेरे राज्य में जीतने के लिए परमेश्वर तूने इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। प्रभु आज इस झूम में जुटे हुए अनेक व्यक्तियों को प्रभु ब्लेस कर, आशीषित कर पिता परमेश्वर। आज व्यक्तिगत प्रार्थनाओं की ओर जब हम जाते हैं, आज की रात चमत्कार की रात बन जाए, आज की रात में दर्शन होने पाए प्रभु, आज की रात में परमेश्वर ओ हालेलुया दर्शन नियुक्त होने पाए पिता, की तरह वचन कहता है जहां दर्शन नहीं वहां लोग निरंकुश हो जाते। प्रत्येक को ब्लेस कर पिता, रोजी खास तौर से तेरे दास के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने आज सेवकाई किया, उनके मिनिस्ट्री को प्रभु, उनके परिवार को भी प्रभु हम ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने पूर्ण रूप से पिता हम सभी को ब्लेस किया प्रभु, आशीषित किया आज के शाम के लिए, हम धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु एक और बार सरमैन को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, उनकी सेवकाई को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं, इसलिए अपने परिवार को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। अनुग्रह कर, करुणा कर, सोना चाहते हैं दे प्रभु, तेरे नाम की महिमा करने पाए, सब कुछ प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रभु, हर एक को छुआ और आशीषित किया, सारी बातों में आपको ऊंचा उठाते हुए धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी दुआ को सुना प्रभु, सब कुछ थैंक यू फादर। धन्यवाद देते हैं आपके सामने, आपने ब्लेस किया, आशीषित किया, हर एक को छू लिया पिता, आपके लिए धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा प्रभु आप भी देते थे, सारा आदर आपको भी मिलने पाए क्योंकि आप ही इसके योग्य थे पिता। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमेन आमेन आमेन। प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना है। आइए अपने दोनों हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। इन तीनों दिन की सेवकाई के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। 3 बार हालेलुया बोलकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुत आज से आशीष दे। आप लोग आपस में जय मसीह कह सकते हैं। जय मसीह की, जय मसीह की। थैंक यू अपने माइक प्रदेश को फॉर खोल ज्वाइनिंग, सकते हैं, थैंक आपस में यू जय वेरी मसीह कह मच। सकते we हैं। will we will organize another meeting, okay, we will call everyone. God bless you. सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। God bless you.